grow. We want to raise a powerful people in the church. Our Father has so much of inheritance for us. And the God which giving promise to you personally, that promise will be powerful. Book of Romans, रोमियो की पुस्तक chapter 8 verse 19. 8वां अध्याय 19 नंबर का वचन। For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। I am excited about God's word. मैं प्रभु के वचनों को लेकर बहुत ही उत्साही हूँ। Here in Romans chapter 8 verse 19 Bible says, और यहाँ रोमियो 8वें अध्याय के 19 नंबर के वचन में बाइबल कहता है, the whole creation eagerly wait for the manifestation of the sons of God. लिखा गया है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। The whole earth, the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. और पूरी जगत, पूरा सृष्टि जो है परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का जो है आशा भरी दृष्टि से बाट जो रही है। It is not a son of God, it is a sons of God. और ये जो परमेश्वर के पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्रों का। You understand what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा It है? is not talking about Jesus. ये यीशु के बारे में नहीं कह रहा है। Don't think that the whole creation is waiting for the second coming of Jesus. ये मत सोचो कि पूरी सृष्टि जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रही। Bible says the whole creation waiting for the manifestation of the sons of God. बाइबल कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है मनुष्यों के पुत्रों का प्रकट होने का जो है आशा भरी नजरों से इंतजार कर रहा है। The word sons is a plural. और जो यहाँ पुत्रों जो लिखा है वो अनेक वचन है। That means many sons. इसका मतलब बहुत सारे पुत्र। And the good news is that means it includes you. और शुभ संदेश ये है कि इसमें आप भी हैं। Bible says बाइबल कहता है the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. बाइबल कहता है कि पूरी सृष्टि जो है मनुष्यों के पुत्रों का प्रकट होने का बाट जो रही है। This year is going to be the year of manifestation. और यह साल जो है प्रकट होने का वर्ष होगा। And manifestation of the sons of God. और परमेश्वर के पुत्रों के जो प्रकट होने का वर्ष। The word sons of God, that means the grown up children of God. और जब मनुष्य परमेश्वर के पुत्रों जब हम कहते हैं इसका मतलब जो है बड़े हुए जो है उम्र में बड़े हुए बेटे। You understand? समझ में आ रहा है? Grown up children. और बड़े हुए बच्चे। When we get born again, जब हमारा नया जन्म होता है, we are child that time. और उस समय हम छोटे बच्चे होते हैं। But when we are child, we don't have any kind of power. लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर कोई ताकत नहीं होती। We must grow to a level where we become sons. हम उस हद तक पहुंचना है जहां पर हम पुत्र बने। And when you become son, you become a powerful person. और जब हम पुत्र बनते हैं तो हम सामर्थ्यशाली इंसान बनते हैं। And Bible says और बाइबल कहता है the whole creation is waiting for the manifestation of sons of God. और लिखा गया है कि सारी सृष्टि जो है परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का बाट जो रही है। Let's see this clearly from the Bible. और आइए हम ये बात जो है बाइबल से साफ साफ देखें। Book of Luke chapter 1 verse 80. लूका पहला अध्याय 80 नंबर का वचन हम देखेंगे। Here Bible says, यहाँ बाइबल कहता है so the child grew and became strong in the spirit and was in the desert till the day of his manifestation to Israel. और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। Here you can able to see in this Luke chapter 1. और यहाँ पर हम लूका पहले अध्याय में देख सकते हैं। It talks about John the Baptist and also about Jesus. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु के बारे में भी कहा गया। Here it is talking about the child. और यहाँ पर बच्चे के बारे में कहा And गया। the child grew. और यहाँ बच्चा बढ़ता है। Everybody say every child has to grow. और सभी लोग कहे हर बच्चे को बढ़ना है। The problem in the body of Christ, many believers remain child for 15 years, 20 years and 30 years. मसीह की देह में समस्या ये है कि जो है विश्वासी जन जो बच्चे हैं वो 20 साल 30 साल 40 साल से बच्चे के बच्चे ही हैं। But every child should grow. That is God's desire. लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक बच्चा बढ़े। If you are a child of God, you must grow. अगर आप परमेश्वर की संतान है तो आपको बढ़ना है। Here Bible says the child grew and strong in the spirit. और यहाँ पर लिखा है कि बच्चा बड़ा और आत्मा में बलवंत होता गया। And the child was in the desert. और वो बच्चा जो है जंगल में था। And
when the child was in the desert, it was a preparation period. और बच्चा जंगल में था और वो तैयारी का समय था। And then the child was manifest to Israel, Bible says. और फिर लिखा गया है कि वो बच्चा फिर इजराइल में प्रकट हुआ। See, there's a time for manifestation for every child. देखो हर एक बच्चे का प्रकट होने का एक समय है। When he got born again, जब आपका नया जन्म होता we है, are a newborn baby. हम जो है नए जन्मे शिशु होते हैं। So we have to desire the sincere milk of God's word. तो हमें जो है परमेश्वर के जो है बहुमोल जो दूध की जो इच्छा करना है। Then as we are taking the sincere milk of God's word, जब हम गंभीर परमेश्वर के वचन रूपी दूध लेते हैं and we will grow. और हम बढ़ते हैं, And as we keep on growing, और जैसे हम बढ़ते जाते हैं there is a time of preparation in our life. तो हमारे जीवन में जो है तैयारी का समय होता है। And once you prepare all those, finish all those preparation, और एक बार जब आप वो सारी तैयारी पूरी कर लेते हो, then the time for you to manifest in the world. फिर समय आ जाता है कि आप संसार में दुनिया में प्रकट हो जाएं। Jesus was born as a small child, और यीशु मसीह शिशु के रूप में जन्मे and he began to grow little by little. और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। Listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुने, God is a God of process. और परमेश्वर जो है प्रक्रिया का परमेश्वर है। He taken even Jesus in a certain process. और यहाँ तक कि यीशु के लिए भी कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। Jesus is also born like any other children, और यीशु मसीह भी किसी और अन्य बच्चों के जैसा जन्मे and he began to grow. और वो बढ़ने लगे। Even at the age of 12 years, he knows everything. और यहाँ तक कि वो 12 साल की उम्र में भी सब हो जानते He हैं। understands God's plan and purpose. वो परमेश्वर के उद्देश्य और योजना को जानते थे। He knows scripture very well. He was like a Bible scholar. और वो जो हर एक शास्त्र भाग को अच्छी तरह जानते थे, मानो जो है वो पवित्र शास्त्र के पंडित थे। But at the age of 12, लेकिन 12 साल की उम्र में but still he is a child. फिर भी वो शिशु ही थे। And that is not a time for his manifestation. तो तब उनका समय नहीं था कि वो संसार में प्रकट हो। But when he became age of 30, लेकिन जब वो 30 साल की उम्र के हुए, and that is a time for him to manifest. तब समय आ गया कि वो दुनिया के सामने आए। Until the time of age of 30, he was working as a carpenter. और 30 साल होने तक वो जो है एक कारपेंटर की तरह काम करते And रहे। he was working and preparing himself. और वो काम करते रहे और अपने आप को तैयार करते रहे। Before manifestation, there is a preparation. और हर एक बार प्रकट होने से पहले जो तैयारी होती है। If you are going to come up and grow to a level, and then one day you are going to manifest as a sons of God, और एक बार जब आप तैयार होके जो है प्रकट होते हैं परमेश्वर के पुत्रों के समान, and you must grow and you must prepare yourself, then you will manifest after some time. और फिर आपको तैयार होना है, प्रकट होना है कुछ समयों के बाद। And Jesus grown, और यीशु मसीह बढ़े, now he grown up as a full son, और अब वो पूरे संपूर्ण पुत्र की तरह जो है बढ़ गए, and he began to manifest outside. और अब वो बाहर जो है प्रकट होने लगे। And the first place where he went to John the Baptist, और वो सबसे पहले जाकर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिले, he went and submitted himself to the John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वो अधीन हो गए। Jesus knows everything. यीशु मसीह सब जानते थे, He's a son of God. वो परमेश्वर के पुत्र थे। He has all potential. He has all power and authority. उनके अंदर सारी ताकत थी, सारी क्षमता थी। Yet he went and submitted to John the Baptist. फिर भी वो जाकर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अधीन हुए। And when he submitted to John the Baptist, और जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के and अधीन when हुए he taken the baptism, और वो जब बपतिस्मा लिए and the heaven was open, और स्वर्ग खुल गया and the voice came from heaven. और स्वर्ग से एक वाणी आई, Now God the Father said, "This is my beloved son." और पिता परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। Now God the Father is proud about his son. और अब प्रिय पुत्र पिता जो है अपने पुत्र से बहुत ही गर्विष्ठ हुए। You see, when we have a child, देखो जब आपके पास बच्चा होता है, children bring joy to us. बच्चे होते हैं जो अपने हमें जो है आनंद देते We हैं। take the children and playing and kissing the children always. हम क्या करते हैं, बच्चों को लेते हैं, गोद में उठाते हैं, उनसे खेलते हैं, उन्हें चुंबन देते हैं। They bring lot of joy to us. वो हमें बहुत ही आनंद लाते हैं। When they first time begin to walk, our heart begin to rejoice. और जब वो पहला कदम उठाते हैं चलने के लिए तो हमारा दिल बहुत खुशी से भर जाता है। My daughter is not yet walking, she is crawling, but my heart is rejoicing when I see that. अब मेरी बेटी अभी तक तो चलने नहीं लगी, लेकिन जमीन में जब वो रेंगती भी है तो देखकर मुझे बड़ी खुशी हो जाती है। Children bring joy to the father's heart. और जो है बच्चे अपने पिता के हृदय को खुशियां लाते हैं। But when your son grown up, लेकिन जब आपके बच्चे बढ़ जाते हैं they will bring a pride to father heart. तो पिता के हृदय को जो है गर्व लेकर आते हैं। So when you see your children, become very big, तो जब आप देखते हो कि आपका बच्चा जो अच्छा बड़ा हो गया है, they finish their graduation. वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिए, On the day of their graduation, और उस ग्रेजुएशन के दिन your father heart will, you'll have a proud. और पिता का दिल जो है गर्व से फूल जाता है। You will tell, that is my daughter, that is my son. और वो कहेगा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। When they grow, that brings
brings pride to the father's heart. और जब बच्चे बढ़ जाते हैं तो वो पिता के हृदय को गौरव लेकर आते हैं। But when they are small, it brings joy. लेकिन जब आप छोटे होते हो तो खुशी लेकर आते हो। When Jesus was born, जब यीशु मसीह जन्मे and God the Father sent angels to announce his birth, तो पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा उनके जन्म का ऐलान करने के and लिए, he told, joy to the world. और कहा कि संसार में आनंद हो, And there was a rejoicing and joy and celebration. और वहाँ पर आनंद और खुशी था। When the child was born, it was always joyful. देखो जब बच्चा जन्म लेता है तब सभी जगह खुशियाँ होती है, When we get our child born, we celebrate, we rejoice. और जब बच्चा होता है तो हम आनंद मनाते हैं, हम बड़ी खुशियाँ मनाते And हैं। Bible says, और बाइबल कहता है when you accept Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, when any person become a born again child, और जब कोई बच्चा जो है नया जो प्रभु में नया जन्म लेता है, when you confess the Lord Jesus, और जब वो यीशु का अंगीकार करता है, and when you become born again, और जब वो नया जन्म लेता है, Bible says there is a great joy and celebration in the heaven. बाइबल कहता है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद और उत्सव मनाया जाता है। And when a child is born in the kingdom of God, there is a great joy in the heaven. और जब जो है परमेश्वर के राज्य में एक बच्चा नया जन्म लेता है तो वहाँ पर बड़ा ही आनंद और खुशियाँ होती So है। when Jesus was born, it was joy to the world. तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सारे संसार में यह आनंद मनाया गया, Father God sent his angel to announce about it. और पिता परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा इस बात की घोषणा करने के लिए। But when Jesus began to grow up, लेकिन जब यीशु मसीह बढ़ने लगे, when he began to become a son, और वो जब पुत्र बनने लगा, and God the Father is proud about his son, आप पिता परमेश्वर अपने बेटे को लेकर बड़ा गौरव महसूस करने he लगे। began to tell to these people, this is my beloved son. अब वो लोगों से कहने लगा ये मेरा जो प्रिय पुत्र है। When a child grows and when become a son, it brings a pride in the fathers. जब वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, बेटा बड़ा पुत्र हो जाता है, तब पिता के दिल को वो गौरव लेकर आता है। Listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुनिए। In the same manner, उसी प्रकार even though you are born again, हालांकि आपका नया जन्म हुआ when है, you born again, you are a small child, जब आपका नया जन्म हुआ तब आप छोटे बच्चे थे, but you cannot be remain the child. लेकिन आप ऐसे ही छोटे बच्चे जैसे ही नहीं You रहे। should grow to a level where you become a sons of God. आपको उस हद तक बढ़ना है जहां आप परमेश्वर के पुत्र बनो। Everybody should grow to a level where you become a sons of God. आप हर एक जन को उस हद तक बढ़ना है जहां पर आप पिता परमेश्वर के पुत्र कहलाए। And when you become a sons of God, और जब आप पिता परमेश्वर के पुत्र बनते हो you will bring a pride to the God the Father's heart. तो आप जो है पिता परमेश्वर के हृदय को गौरव लेकर आते हो। And not only that, you will bring a pride to the Father's heart, और इतना ही नहीं कि आप पिता परमेश्वर के हृदय को गौरव लाते हो, the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. बल्कि सारी सृष्टि जो है आशा भरी नजरों से जो है परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार कर रही है। There was a time Jesus was a small child, और एक सा भी समय था जब यीशु मसीह छोटे बच्चे थे, holding his parents' hands everywhere और पिता जो है वो अपने माता पिता का हाथ पकड़ के सभी जगह चलते थे, and doing small work in the house. और घर में छोटा मोटा काम करते थे। But the time came लेकिन समय आया when he became a son, जब वो बेटा पुत्र बना the story began to change. और सारी कहानी बदलने लगी, He went everywhere और वो सभी जगह गए as a powerful preacher, और एक सामर्थ्यशाली प्रचारक के रूप में preaching about the kingdom of God, राज्य का प्रचार करते हुए, healing every sick people. सारे बीमारों को चंगा करते हुए, He walks on this earth as a man of authority. और इस पृथ्वी पर वो जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति की तरह चलने लगे। When he became a son and as he began to walk, और जब वो पुत्र बन के चलने लगा demons began to cry. और शैतान रोने लगे, Oh Jesus, son of man, why you come here to torment us before the time? और वो कहने लगे हे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह क्यों तू समय से पहले आके हमें सताने आया है। When he was a child, no demons were crying. और जब वो छोटा बच्चा था तो कोई रोता नहीं था But when शैतान, he began to grow up as a son, लेकिन वो जब एक पुत्र के जैसे बढ़ने लगा as he began to walk, और वो जब चलने लगा demons were afraid. शैतान डरने लगे Sickness began to leave. और बीमारियां छोड़ के जाने लगी, Anyone who touches his garment, they receive the healing. और जो कि यीशु के कपड़ों को छूता वो चंगाई पाता, Wherever he go, healing and deliverance. और जहाँ कहीं वो जाता वो चंगाई और छुटकारा पाते लोग। Now the Son of God has manifested. आप परमेश्वर का पुत्र जो है प्रकट हुआ, And that is what the world creation is waiting for. और इसी के लिए जो है संसार जो है बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है। Jesus just an example for us. और यीशु मसीह हमारे लिए केवल एक उदाहरण है, He came to show us this is how a son of God should live. और यीशु मसीह हमें ये दिखाए कि ऐसा ही होना चाहिए हर एक परमेश्वर का पुत्र। So Jesus began to grow as a small child और यीशु मसीह जो है एक छोटे बच्चे की तरह बढ़ने लगे and began to become strong in his spirit और आत्मा में बलवंत होते गए, and began to become a son और फिर वो एक पुत्र बनने लगे and began to manifest as a son, और जो है पुत्र की तरह प्रकट होने लगे, walking in full authority and power. पूरे सामर्थ और अधिकार में चलने लगे। Now it's time for us. अब ये समय आ गया हमारे लिए। Our
our story is about to change. हमारी कहानी अब बदलने पर है। We've been like a small child for many years. हम कई सालों तक एक छोटे बच्चे जैसे थे, But I am excited about this year. लेकिन इस साल को लेकर मैं बहुत उत्साही हूँ। My church is about to produce lot of sons of God. हमारा चर्च, मेरा चर्च जो बहुत से पुत्रों को, परमेश्वर के पुत्रों को जो है तैयार करने वाला And है। in this year I am going to grow and walk as a sons of God. और इस साल में जो है परमेश्वर के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और चलूंगा। And the God the Father will be proud about me. और पिता परमेश्वर मुझे लेकर बड़ा गौरव महसूस करेंगे। He will excite, wow, I got one more sons of और God. वो बड़ा खुश होगा मेरा परमेश्वर पिता के देख कर, ओ मुझे और एक पुत्र मिल गया। Now Anil began to manifest as a sons of God. ओ अब अनिल जो है परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा है। And all my brothers and sisters will begin to manifest as a sons of और God. मेरे सभी भाई बहन यहाँ पर जो है प्रभु परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। Your story is about to change in the next year. और अगले साल आपकी कहानी बदलने पर है। When you are just like a child, you are powerless. और जब आप छोटे बच्चे जैसे ही रहते हो तो आप में कोई सामर्थ्य नहीं होती, But when you begin to grow, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ने लगते when हो, you begin to grow as a sons of God, जैसे जैसे आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में the बढ़ते हो, whole creation will be excited. सारी सृष्टि जो है उत्साही हो जाएगी। And the creation is waiting for the manifestation of sons of God. और वो पूरी सृष्टि जो है परमेश्वर के पुत्र की प्रकट होने की इंतजार कर रही है। In the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से In this church, इस कलीसिया में for us it is a time to manifest as a sons of God. अब हमारे लिए समय आ चुका है कि हम परमेश्वर के रूप में प्रकट हो, परमेश्वर के पुत्र के रूप We में। are going to enter into the next year as a manifestation of the sons of God. और हम इस नए वर्ष में परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करते हुए प्रवेश करेंगे। When you begin to grow as a sons of God, और जब आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट होने लगोगे you become a powerful person. तो आप एक सामर्थशाली व्यक्ति बनने लगोगे। It's the saddest thing. और ये बड़ी दुख की बात है, Many people still like a child. बहुत से लोग अभी तक छोटे बच्चे जैसे ही हैं। Many years they are a Christian. कई सालों से वो क्रिश्चियन है, Still they are like a child, they are crawling. अभी भी वो छोटे बच्चे जैसे ही हैं, वो अभी भी रेंग रेंग के चलते हैं। You know, they are crawling till now. अभी भी वो रेंग रेंग कर चलते हैं। They never begin to grow up. अभी तक वो बढ़ना शुरू नहीं किए, They never begin to stand up. अब तक वो खड़ना शुरू नहीं किए, They never become a powerful person. अभी तक एक सामर्थशाली इंसान नहीं बने। They are attending a church for 20 years. 20 साल से वो चर्च जा रहे हैं, Some of them attending a church for 30 years. कुछ लोग 30 साल से चर्च जा रहे हैं, Some of them are born Christians. और कुछ लोग तो पैदाइशी क्रिश्चियन है, But they never grow for 40 years. लेकिन 40 साल बीत गए लेकिन वो बड़े नहीं हुए। They are crawling like a child. अभी भी वो छोटे बच्चे जैसे ही रेंगते हैं, And they always have headache today, और hip pain tomorrow and toothache next day. और हमेशा उनको कल देखा तो कमर दर्द था, आज देखा तो सर दर्द है, और कल देखेंगे तो दांत दर्द होगा। You know, always they will come up with some kind of pain. और हमेशा कुछ ना कुछ दर्द के साथ आते हो, You know, leg pain today, और आज पैर दर्द है, hip pain tomorrow, कल देखेंगे बोले कमर दर्द and है, the chest pain next day, और फिर देखेंगे बोले सीना दर्द आ गया, and the headache, फिर सर दर्द, and the fever. और फिर बुखार। You know, they are not manifesting as a sons of God. देखो वो लोग अपने आप को परमेश्वर के पुत्र जैसा प्रकट नहीं They करते, are still crawling from one sickness to another sickness. अभी भी वो एक बीमारी को लेकर दूसरी बीमारी तक वो जो रेंगते रेंगते जाते I हैं। am telling you today, मैं आज आपसे कहता हूँ, when you grow and become a manifesting the sons of God, जब आप बढ़ जाते हो और परमेश्वर के पुत्र में रूप में प्रकट होते हो, sickness will begin to leave us. आपको बीमारी छोड़कर जाएगी, Every kind of problem will begin to leave us. हर एक प्रकार की समस्या छोड़कर जाएगी, The devil which is tormenting you will begin to afraid of you. और हर वो शैतान जो आपको सताता है वो आपसे डरने लगेगा। I will tell you one story. A small baby, बच्ची, and his auntie was taking care of that baby. और उसकी आंटी जो है उस बच्ची को संभालती थी, And that auntie always used to harass that baby. Harass. और वो आंटी जो है छोटी बच्ची को हमेशा सताती थी, Every time beating the baby, हमेशा बच्ची को मारती, not giving the food properly. उसे खाना नहीं देती बराबर, And the child was growing like that. और उस तरह से वो बच्ची बढ़ती चली And गई, the child was growing little by little. और वो बच्ची जो है दिन ब दिन बढ़ती चली And गई, this auntie was harassing always. और उसकी आंटी उसे हमेशा सताती, Not giving proper food. और उसे बराबर खाना नहीं देती, And beating the child always. और वो बच्ची को हमेशा मारती, Giving too much of work. और बहुत काम देती, Every time shouting and threatening. और हमेशा चिल्लाती और धमकाती। But the child began to keep on growing. लेकिन वो बच्ची जो है बढ़ती चली गई, And one day, और एक दिन the child grew to exactly to that auntie's level. और एक दिन वो बच्ची जो है बराबर जैसे वो आंटी थी वैसे वो बड़ी हो गई। Now that child is no more a child. अब वो बच्ची नहीं रही, Now the child grown up into a son.
अब वो बच्ची जो है पुत्र के रूप में आ गई Now the auntie began to raise her voice as usual. और अब वो आंटी पहले की जैसे उसे चिल्लाने लगी। And now the boy grown up came to the same height and began to stare at the auntie. लड़का जो है बड़ा हुआ और उसके ऊपर जो है उसे गुस्से से देखने लगा And began to stare at the auntie. और उसके ऊपर जो है गुस्से से देखने लगा। The auntie began to little bit afraid. अब वो आंटी थोड़ा थोड़ा डरने लगी And the boy began to grow more. और वो बच्चा जो है बढ़ने लगा और And that auntie began to lose her power over it. अब वो आंटी जो उसे धमकाती थी उसका ताकत कम होता गया। And the boy grown and become a powerful person. अब वो बच्चा जो है बड़ा हो गया और वो ताकतवर हो गया The auntie began to tell, praise the Lord, sir. और अब आंटी कहने लगी ओ प्रेज द लॉर्ड। Now he is not a child anymore. अब वो बच्चा नहीं रहा, He began to grow. अब वो बढ़ने लगा। Now that auntie cannot able to harass him. अब वो आंटी उसे सता नहीं Not सकती able to beat him. और उसे मार नहीं सकती, Not able to threaten him. अब वो धमका नहीं सकती Because he is not a child anymore. क्योंकि अब वो कोई बच्चा नहीं रहा। He began to grow as a son. अब वो जो है बच्चे वो जो है बड़ा पुत्र के रूप में बढ़ने As लगा। long as you are a child, जब तक आप बच्चे रहोगे and the devil will be like your auntie, और शैतान आपके लिए वो आपके आंटी जैसी रहेगी giving sickness, और बीमारी देगा, giving every kind of problem. और प्रकार की समस्या लाएगा, One sickness after another. एक बीमारी के बाद एक बीमारी, And sickness will rotate to everyone in the house. और वो बीमारी घर में हर एक के पीछे पीछे जाएगी And one oppression after another oppression. और एक के बाद एक ऑपरेशन। And as long as we are child, और जब तक आप बच्चे रहोगे and the devil is began to harass us. और शैतान हमें जो सताएगा, But when you grow up as a sons of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में बढ़ोगे when you grow up as a sons of God, और जब आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में बढ़ोगे, and the devil will begin to afraid of you. फिर शैतान आपसे डरने लगेगा। The devil who used to harass you, और जो शैतान आपको सताता था and it will show the way for you. और वो अब आपको रास्ता बताएगा, And the devil will tell, I will not come in your way, sir. और शैतान बोलेगा भाई अभी से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं I आऊंगा, am here to raise some sons of God. और मैं यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों को उभारने पर। Those who want to take a responsibility to grow, you must grow today. और जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं बढ़ने की, वो आज से बढ़े। No father can grow for the children. और कोई पिता जो है बच्चों के लिए बढ़ नहीं सकता। I love my son so much, मैं मेरे बेटे से बहुत प्रेम करता but हूँ, I cannot grow for him. He has to grow for him. लेकिन उसके लिए मैं तो बढ़ नहीं सकता हूँ, उसे ही बढ़ना है। As a pastor, I love you so much, और पासवान होने के नाते मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, but I cannot grow for you. Must grow personally. लेकिन मैं आपके लिए बड़ा नहीं हो सकता हूँ, आपको अपने आप बढ़ना है। But there are people coming to even to my church and sitting and sleeping and not growing at all. और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेरी चर्च में आते हैं, बैठते हैं, सुनने के टाइम सोते हैं और बढ़ते नहीं। And you know what will happen after some time? और पता है कुछ समय के बाद क्या होगा? One side I will have lot of sons और एक तरफ मैं बहुत से पुत्रों को उभार रहा हूँ, who are showing the way to devil to get out of the place. जहाँ पर वो जो शैतान को रास्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ से अभी निकलो। And the sons will kicking devil every different directions. और ये पुत्र जो है शैतान को हर एक दिशा से मार के भगा रहे। But the children who are not